امام مہدی کا تصور اسلامی عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے جو آخر الزمان سے متعلق ہے۔ ان کا ذکر سیدھا قرآن مجید میں نام کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن احادیث نبوی میں واضح اشارات اور تفصیلات موجود ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب دنیا ظلم، فتنہ، ناانصافی اور فساد سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کو اٹھائے گا جو انصاف اور عدل قائم کرے گا۔ یہ شخص امام مہدی کے نام سے مشہور ہوگا۔ لفظ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ یا جسے اللہ نے ہدایت دی ہو۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ان کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام میرے نام جیسا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ یہ روایت مختلف کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے، جن میں سنن ابو داؤد، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب بھی شامل ہیں۔ حالانکہ بخاری اور مسلم میں مہدی کا لفظ سیدھا طور پر کم آتا ہے، لیکن آخر الزمان کے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ امام مہدی کا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ روایت کے مطابق وہ سید ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب اسلامی دنیا انتہائی افراط و تفریط، سیاسی انقسام اور اخلاقی زوال کا شکار ہوگی۔ دنیا میں ہر طرف بے انصافی ہوگی، قتل و غارت عام ہوگی، لوگ مادیت میں ڈوب چکے ہوں گے اور حق پر چلنے والے کم رہ جائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ مہدی کا ظہور اچانک ہوگا۔ وہ اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ عام انسان کی طرح گزاریں گے اور شاید خود بھی اپنی ذمہ داری سے پوری طرح واقف نہ ہوں، لیکن جب اللہ کا وقت آئے گا تو ان کی اصلاح ایک رات میں کر دی جائے گی۔ اس جملے کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں روحانی طور پر تیار کرے گا اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے گا۔ ان کا ظہور مکہ میں ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ انہیں زبردستی بیعت کرنے پر مجبور کریں گے جب وہ کعبہ کے قریب ہوں گے۔ ان کی بیعت رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ ابتدا میں وہ بیعت لینے سے انکار کریں گے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھیں گے، لیکن لوگوں کے اصرار پر انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ ان کے ظہور کے وقت دنیا میں 3 افراد حکومت کے لیے لڑ رہے ہوں گے جو ایک خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی افراتفری کے دور میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ ان کی پہچان ان کی پیشانی کی چوڑائی اور ناک کی بلندی سے بھی کی گئی ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ مہدی کے ظہور کے بعد ایک لشکر ان کے خلاف نکلے گا جو انہیں ختم کرنا چاہے گا، لیکن وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ واقعہ مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدا نام کے مقام پر ہوگا۔ اس نشانی کے بعد لوگ اور زیادہ یقین کے ساتھ ان کی طرف رجوع کریں گے۔ مہدی کا دور حکومت تقریباً 7 سال بتایا گیا ہے، کچھ روایت میں 9 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کا دور امن، انصاف اور برکت کا دور ہوگا۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان سے بارش ہوگی، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ لینے والا نہ پائیں گے۔ لوگوں کے دلوں سے بغض اور حسد نکال دیا جائے گا۔ اس دور میں ایک اور بڑا فتنہ ظہور کرے گا جو دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا۔ مہدی اپنے لشکر کے ساتھ دجال کا مقابلہ کرنے کی تیاری کریں گے۔ اسی دوران آسمان سے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے قریب سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو مہدی انہیں امامت کی دعوت دیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ نماز آپ پر قائم کی گئی ہے، اس لیے آپ ہی امامت کریں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی پیروی میں نماز ادا کریں گے، جو مہدی کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ اس طرح دنیا دجال کے فتنے سے نجات پائے گی۔ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر دنیا میں انصاف اور امن قائم کریں گے۔ مہدی کے دور میں اسلامی نظام اپنی اصل روح کے ساتھ قائم ہوگا۔ سود، جھوٹ، دھوکہ، فساد اور ہر قسم کی بے انصافی ختم ہو جائے گی۔ دشمنی کی جگہ محبت اور بھائی چارہ ہوگا۔ جنگلی جانور بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مہدی کی وفات کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اکثر روایات کے مطابق وہ اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ان کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ اور زندہ رہیں گے
और फिर उनकी भी वफात होगी। सुन्नी और शिया अकीदे में महदी के हवाले से कुछ इख्तिलाफात भी हैं। सुन्नी अकीदे के मुताबिक महदी अभी पैदा नहीं हुए बल्कि आखिर ज़मान में पैदा होंगे, जबकि शिया अकीदे के मुताबिक महदी पैदा हो चुके हैं और गैबत में हैं और वक्त आने पर ज़हूर करेंगे। शिया उन्हें मोहम्मद बिन हसन अल अस्करी मानते हैं जो 12वें इमाम हैं। महदी का तसव्वुर सिर्फ एक सियासी इनकलाब का नहीं बल्कि रूहानी तजदीद का भी है। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत हासिल करना नहीं होगा बल्कि दीन को उसकी असल सूरत में ज़िंदा करना होगा। वो बिदात को ख़त्म करेंगे, सुन्नत को ज़िंदा करेंगे और कुरान और सुन्नत के निज़ाम को नाफिज करेंगे। आखिर ज़मान की निशानियों में से कई निशानियां ज़हूर हो चुकी हैं, जैसे कि इमारतों का बुलंद होना, वक्त का तेज़ गुजर जाना, कत्ल का आम हो जाना और फितनों का फैल जाना। ये सब उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मेहदी का ज़माना करीब हो सकता है, लेकिन उनका एग्जैक्ट वक्त अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेहदी का जिक्र इस्लामी तारीख में मुख्तलिफ तहरीकों ने भी अपने लिए इस्तेमाल किया। कई अफराद ने अपने आप को मेहदी करार दिया, लेकिन उलमा ने उन दावों को रद्द कर दिया। असल मेहदी की पहचान उन निशानियों से होगी जो अहादीस में वाज़ह तौर पर बयान हुई हैं। महदी के ज़हूर से पहले मशरिक की तरफ से सियाह झंडों का निकलना भी एक निशानी बताई गई है। कुछ रिवायत में खुरासान का जिक्र मिलता है। ये लश्कर महदी की हिमायत करेगा और उनके साथ मिलकर जंग करेगा। उनका दौर इक्तिसादी इंसाफ का होगा, माल की बराबरी होगी, गरीबी कम हो जाएगी और लोग खुशहाली महसूस करेंगे। ज़कात और सदकात का निज़ाम इतना मजबूत होगा कि लोग लेने के बजाय देने वाले ज़्यादा होंगे। महदी का किरदार सिर्फ जंग तक महदूद नहीं होगा, वो एक मुस्लिह, मुजद्दिद और रहनुमा होंगे जो इंसानियत को रूहानी और अखलाकी तौर पर बुलंद करेंगे। उनकी शख्सियत में तवाज़ु, तक़वा और हिम्मत का इम्तिज़ाज होगा। उनका ज़माना एक अजीम इम्तहान का ज़माना भी होगा, क्योंकि दज्जाल का फितना, जंगों का सिलसिला और दुनिया भर के सियासी तनाज़ात अपने उरूज कर होंगे। सिर्फ वो लोग कामयाब होंगे जो ईमान पर साबित कदम रहेंगे। मेहदी के बारे में ये भी रिवायत है कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करेंगे और इस फतह में तकबीर और तहलील का किरदार होगा, यानी जंग के बजाय रूहानी क़ुव्वत से कामयाबी मिलेगी। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू इंसाफ और अदल का नमूना होगा। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सादगी पसंद होंगे, बैतुल माल से अपने लिए कुछ ख़ास नहीं रखेंगे और आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। उनके ज़हूर का मकसद दुनिया को याद दिलाना होगा कि हक़ हमेशा बातिल पर गालिब आता है। चाहे जुल्म कितना ही बढ़ जाए, आखिरकार अल्लाह का निज़ाम ही कायम होता है। इमाम मेहदी का मामला सिर्फ चंद रिवायतों तक महदूद नहीं, बल्कि इस्लामी इल्मुल अकायद, तारीख़, सियासत और रूहानियत का एक गहरा और वसी मौजू है। जब हम इमाम मेहदी के बारे में तफसील से बात करते हैं तो हमें उन तमाम रिवायतों, उलमा के अक़वाल, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के नज़रियात और तारीख़ी पस मंज़र को समझना पड़ता है, जहाँ से ये तसव्वुर उभर कर सामने आता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी का तसव्वुर इस्लाम के आखिरुज़्ज़मान के अक़ीदे का हिस्सा है। आखिरुज़्ज़मान का मतलब है वो दौर जो क़यामत से बिल्कुल करीब होगा। इस सिलसिले में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी निशानियां बयान फरमाई हैं, जिनमें अखलाकी ज़वाल, सियासी इनक़िसाम, जंगो जदल और फितनों का सिलसिला शामिल है। इन्हीं निशानियों के दरमियान एक अजीम रहनुमा का ज़हूर होगा जो मेहदी के नाम से मशहूर होगा। रिवायत के मुताबिक मेहदी का असल नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। ये तशब्बुह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है। उनका नसब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद से होगा, यानी वो अहले बैत में से होंगे। सुन्नी रिवायत के मुताबिक वो इमाम हसन की नस्ल से होंगे, जबकि कुछ रिवायत इमाम हुसैन की नस्ल का भी जिक्र करती हैं, लेकिन अक्सर सुन्नी उलमा इमाम हसन की तरफ रुझान रखते हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से रिवायत में आता है कि उनकी पेशानी कुशादा होगी और नाक बुलंद होगी। वो दरमियानी कद के होंगे, उनका रंग सफ़ेद या गंदा सफ़ेद होगा और उनकी शख्सियत में वक़ार और जलाल होगा। ये निशानियाँ इसलिए बयान की गई हैं ताकि जब वो ज़हूर करें तो लोग उन्हें पहचान सकें और झूठे दावेदार को रद्द कर सकें। मेहदी का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब इस्लामी दुनिया इंतहाई सियासी अफरातो तफरीद का शिकार होगी। अरब मुल्कों में इनकलाबात, हुक्मरानों के दरमियान झगड़े और खिलाफत या क़ियादत के हवाले से तनाज़ात पैदा हो चुके होंगे। एक रिवायत में आता है कि एक खलीफा की वफ़ात के बाद उसके 3 बेटे हुकूमत के लिए लड़ेंगे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिलेगी।
इसी हालत में लोग मेहदी को तलाश करेंगे। महदी मक्का में होंगे और इब्तिदा में अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे, लेकिन जब लोग उन्हें काबा के करीब रुकन और मकामे इब्राहिम के दरमियान बैत करने पर मजबूर करेंगे तो वो इस जिम्मेदारी को कबूल करेंगे। उनकी बैत ज़बरदस्ती होगी, जो इस बात की दलील है कि वो खुद हुकूमत के तालिब नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ये जिम्मेदारी उन पर आएगी। बैत के बाद एक बड़ा इम्तिहान फौरन सामने आएगा। एक लश्कर जो उन्हें ख़त्म करने के लिए निकलेगा, मदीना और मक्का के दरमियान बैदा के मकाम पर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। ये वाक़या एक अजीम निशानी होगा जो दुनिया को हिला कर रख देगा। लोग समझ जाएंगे कि ये शख्स मामूली रहनुमा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है। महदी का दौर हुकूमत, इंसाफ और अदल का दौर होगा। रिवायत में आता है कि वो ज़मीन को इस तरह इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म से भरी होगी। माशी निज़ाम बेहतर होगा, ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी, आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के पास माल की फरावानी होगी। ज़कात देने वाले ज़्यादा होंगे और लेने वाले कम। उनके दौर में एक और अजीम फितना ज़हूर करेगा जो दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। वो अपने आप को खुदा होने का दावा करेगा, जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर पैदा करेगा और लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए गैर मामूली कुदरत का इजहार करेगा। महदी अपने लश्कर के साथ दज्जाल के खिलाफ सफ़बंदी करेंगे। जब जंग अपने उरूज पर होगी तब आसमान से ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। रिवायत में आता है कि वो दिमश्क के मशरिकी हिस्से में सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। उनके कपड़े हल्के जर्द रंग के होंगे और उनके हाथ 2 फरिश्तों के परों पर होंगे। जब नमाज का वक्त होगा तो महदी ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत की दावत देंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करते हुए कहेंगे कि ये नमाज आप पर कायम की गई है। इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में नमाज अदा करेंगे। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और उसे बाबे लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया में एक नया दौर शुरू होगा जहां अमन और सुकून होगा। महदी और ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर दुनिया में इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे। सूद ख़त्म हो जाएगा, जिज़िया का निज़ाम बदल जाएगा और लोग इस्लाम को खुशी से कबूल करेंगे। जंगली जानवर भी इंसानों के साथ अमन से रहेंगे। इस दौर में याजूज और माजूज का फितना भी ज़हूर करेगा। ये 2 कबीले होंगे जो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह उन्हें हलाक कर देगा। उनकी लाशें ज़मीन पर फैल जाएंगी, जिसे साफ करने के लिए अल्लाह परिंदों को भेजेगा। महदी का दौर तकरीबन 7 या 9 साल का होगा। उनकी वफ़ात फितरी होगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। उनकी वफ़ात के बाद ईसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसा और ज़िंदा रहेंगे और फिर उनकी भी वफ़ात होगी। शिया अकीदे के मुताबिक महदी 12वें इमाम है, जिनका नाम मोहम्मद बिन हसन अल आस्करी है। वो 255 हिजरी में पैदा हुए और गैबत में चले गए। उनके मुताबिक वो आज भी जिंदा हैं और वक्त आने पर ज़हूर करेंगे। सुन्नी अकीदे में ये तसव्वुर नहीं, बल्कि उनके मुताबिक महदी आखिर ज़मा में पैदा होंगे। तारीख में कई अफराद ने महदी होने का दावा किया। मिस्र, सूडान और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ दावेदार उभर कर आए। सूडान में मोहम्मद अहमद ने 19वीं सदी में महदी होने का दावा किया और एक तहरीक चलाई, लेकिन उलमा ने इन तमाम दावों को रद्द किया क्योंकि वो अहादीस की निशानियों पर पूरा नहीं उतरते थे। महदी का तसव्वुर सिर्फ सियासी नहीं बल्कि रूहानी तजदीद का भी है। वो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अखलाकी इस्लाह से भी इनकलाब लाएंगे। लोगों के दिल बदलेंगे, इंसाफ आम होगा और हक की रोशनी फिर से चमकेगी। आखिर ज़माना की कई निशानियाँ जैसे इमारतों का बुलंद होना, कत्ल का आम होना, वक्त का तेज़ गुजर जाना और माल की फरावानी का बावजूद बेबरकती होना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया एक बड़ा मोड़ पर खड़ी है। महदी का इंतज़ार मुसलमानों के लिए उम्मीद का पैगाम है। ये तसव्वुर बताता है कि चाहे जुल्म कितना भी बढ़ जाए, आखिरकार अल्लाह का निज़ाम ही गालिब आएगा।